All of you are very welcome. I would like to start this program today with some lines. Yesterday was a dream, tomorrow is a vision, but a day well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Carrying the same vision, I, Madhvi Patkar, Assistant Professor, Faculty of Law, extend my warm welcome to all present here. On behalf to Faculty of Law, RNTU, I respectfully welcome our Dean Faculty of Law, Dr. Nilesh Sharma, and Ms. Nais Zamir, HOD Faculty of Law, and a warm word of welcome to our speaker, Professor Dr. R.D. Dubey, Head of the Department of Law, Kuch Behar, Panchan and Burma University, West Bengal, who is going to talk to us about COVID vaccine and intellectual property rights. COVID vaccine and intellectual property rights is such a interesting topic. This is a subject in which we should all be deeply interested because its recent developments suggests that protecting IP for vaccine and technologies to fight COVID-19 will have a positive impact. इस सेशन ये वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। डॉक्टर आर डी दुबे इज वर्किंग ऑन प्रोफेसर ऑफ लॉ इन कुछ बिहार पंचन एंड बर्मा यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल since October 2017. Earlier, he has worked in the Department of Law, University of North Bengal. He has started his academic career since 2006 from SS Law College, Shahjahanpur, Uttar Pradesh. He has been awarded Paschim Banga Shiksha Ratna Award in 2019. He has contributed 4 books and published more than 30 research papers in different journals. He has presented more than 50 papers in international and national seminars and workshops. He has been invited to deliver more more in international national seminars and workshops. He has been invited to deliver more than 15 lectures in national and international seminar and workshop. He has performed as chairperson and co-chairperson in national and international seminars. During pandemic, he has attended 53 webinars and contributed lectures also. He has associated as paper setter, examiner and member of the board of study of different universities. He has guided more than 30 students in dissertation for LLM degree. He is also supervising more than 8 PhD and MPhil scholars. May I now request Dr. Nilesh Sharma, Dean of Faculty of Law, RNTU, to welcome and introduce our speaker for the day, Professor Dr. R.D. Dubey, to our participant. Nilesh sir, please. Thank you. Thank you, madam. I am audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So, greeting to one and all present here. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. On board today, we have one of the most experienced academicians and eminent speaker, Professor Dr. R.D. Dubey, sir, Head of the Department, Kuch Bihar, Panchan and Burma University, West Bengal. Myself, Dr. Nilesh Sharma, Dean, Institute of Law, Rabindranath Tagore University. Welcome you, sir. Our institute feels extremely honored by your presence, Mr. Sir. Thank you, sir. I am once again heartily welcome you, sir. Today's workshop is organized for law students to gain insight and information about IPR laws. I hope you all will enjoy this session. Thank you all participants, students, faculty members who has joined us today. Now over to Madhu ma'am for beginning the session. माधवी मैडम सेशन शुरू करवाने के लिए सर से आग्रह करिएगा, ठीक है? जी सर. दुबे sir, please start. Hello, I am audible, sir? Yes. Hello, sir, please start your session. Thank you, ma'am. First of all, good afternoon to all of you.
I Good would like afternoon, to sir. thank to the organizer who have invited me to deliver some lecture on the topic relating to intellectual property rights. I thank to Dean Faculty of Law, Rabindranath Tagore University, Head of Department, other faculty members, those who are present here. The topic is very much interesting and always debatable. So, whatever is the experience of any academician relating to intellectual property or relating to the COVID-19, the pandemic, which was started in 2020, we all are suffering with the issues and challenges. So the topic selected by you is appreciated. And again, I would like to thank that you have given opportunity to share my views on this particular topic and issue. So let us start. If you permit me, Dean sir. Yes, sir. Sir, please continue. Okay. Please, sir, please continue. So from the introductory portion of the intellectual property rights, we all aware that creation, enjoyment, and accumulation of property has been a central activity Excuse me, of sir. human life. एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा आपको बीच में. हेलो जी 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 सर, हमारे यहाँ क्या है, 50% बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम को ही बिलोंग करते हैं, तो आप बाइलिंगुअल रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर. अच्छा ठीक है सर. जी ठीक जी ठीक जी. ठीक ठीक Yes, है sir. ठीक है सर. इट्स ओके सर. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम लोगों को एक मानव ना होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते, अर्थ, काम, धर्म एंड मोक्ष, ये चार चीजें जो है ऑब्जेक्टिव होती हैं मानव जीवन के लिए. और हर व्यक्ति, एवरीवन वांट्स टू अर्न द मनी and money from the various resources through the property, through the manufacturing, sale or whatever. सबका एक इच्छा होता है कि हमें धन कमाना है. तो ये जो चार अर्थ, काम, धर्म एंड मोक्ष, ये चार ऑब्जेक्टिव जो मानव जीवन के हैं, ह्यूमन बीइंग के हैं, इसमें सबसे पहला और जो सबसे रेलिवेंट आज के डिस्कशन में होगा वो होगा अर्थ, माने धन, मनी. क्योंकि मनी के बगैर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है. और मनी के लिए हम लोगों को डिफरेंट वर्क करने चाहिए और करने पड़ते हैं. और जो प्रॉपर्टी की बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात है, वहां पर भी अगर हम देखें तो धर्म और मोक्ष तो बाद की बात है, अर्थ सबसे पहला प्रायोरिटी बेसिस में आता है ह्यूमन बीइंग के लिए. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज द मनी. इट इज ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, नॉट टुडे बट सिंस immemorial. So everyone, all human beings wants to earn money from the various resources. According to the Halsbury laws of England, the property that which belongs to a person exclusively for others and can be subject to bargain or sale. या तो वह प्रॉपर्टी हम अपने पास रखते हैं, बेचते हैं या उसका उपयोग करते हैं. ये एक तरह का व्यवस्था है. और उसी के अंदर अगर हम देखें तो गुडविल, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, यूज ऑफ पेटेंट या फिर जो ऑप्शन है हम बेचने का, परचेज करने का, खरीदने और बेचने का, चाहे जो भी प्रॉपर्टी हो,
तो उसको हम, या लाइफ पॉलिसीज हो या फिर अदर कोई राइट्स है, वो सब हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर लेते हैं, हो जाता है। ये एक व्यवस्था है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें होती हैं। तो प्रॉपर्टी को हम दो भागों में बांटते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर, इन ब्रॉड पोर्शन होगा दो। पहला ये होगा कि टेंजेबल प्रॉपर्टी और दूसरा इनटेंजेबल प्रॉपर्टी। टेंजेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी टच बाय ए पर्सन, इंडिविजुअल, लाइक हाउस, कार, लैंड, बाइक, व्हाटएवर इज। तो ये टेंजेबल प्रॉपर्टी है जो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनीशन में भी आती है। हम कॉन्ट्रैक्ट में और सब जगहों को पढ़ते हैं कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, विच वन इज कंसीडर एज ए टेंजेबल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की जो बात हम कर रहे हैं वो है इनटेंजेबल प्रॉपर्टी, दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड इट कैन नॉट बी टच। Intellectual property cannot be touched by anyone. It can be only, means, with the brain, related with the brain, related with the mind. So today I will try to discuss about the intellectual property and its legal protection. Because legal protection, why we need the legal protection? When we are talking about the rights, whatever is the rights relating to the fundamental rights in the constitution, relating to the environmental rights, relating to the property rights, relating to the intellectual property rights, we need to the some protection. When we talk about the rights, it means we need to the protection of the rights, and remedies should be there, and remedies through the law it can be possible, otherwise it is not possible to protect. So under the protection of the rights and all aspects of intellectual property rights, various laws relating to IPR will be discussed during this session. So what is the property, what is the intellectual property, what is the intellectual property rights, और किस तरह से इसकी रक्षा की जाए, किस तरह से रेमेडीज मिलेगी, how the people may protect it, how the people get the remedies. So what is the meaning of the intellectual property? We all aware that human beings are superior from other living creatures because they possess the intellect, and intellect is concerned with the mind, intellect is concerned with the brain, and which one is created by brain, created by the mind, and that is called the intellectual. And what is prepared through this brain and through the mind. So creative genius of human beings creates intellectual property, which in turn, जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि सबका काम है, सभी everyone wants to earn the money, सभी लोगों को धन कमाने के लिए चाहिए। तो जब हम कोई भी क्रिएट करते हैं, कोई भी इन्वेंशन करते हैं या कोई भी खोज करते हैं, which with the help of the, because created by mind, created by the brain, और इस तरह से हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, देन वी कैन अर्न द वेल्थ। धन वहीं से हमें मिल सकता है, और धन कमाने के लिए ही हम ब्रेन का इस्तेमाल या माइंड का इस्तेमाल करते हैं इन ए डिफरेंट वे फॉर द न्यू क्रिएशन। और जब न्यू क्रिएशन होता है, चाहे इन्वेंशन होता है या जो कॉपीराइट की बात हम करते हैं, ये सभी वी विल डिस्कस accordingly in a series. So which one is start from the brain and related with the brain, जहां दिमाग के काम से उत्पत्ति हो मिले या फिर जो ब्रेन से मिलता है, वो जब हम उसको सेल करें और या उस सेल के पर्पस में लाएं, तो हमें वह धन की भी पूर्ति हो सकती है। Which one is the objective of human being life, which was where I have started from the beginning, that this is the core objective, dharma, artha, dharma, kam and moksha. So since it's essentially creation of mind, therefore it is called the intellectual property, because just I have mentioned that
which one is created by mind of an individual, when whatever is, maybe the science and technology. Nowadays, we are in 21st century, we want to the development, economic development, because in a globalized era, we need to the development and run with the other countries. दूसरे countries के साथ हमें कैसे चलना है, कैसे हम उसके साथ चल पाएंगे, ये हमारी एक जरूरत है। और आज हम अगर बात कर रहे थे कोविड-19 की पेंडेमिक के दौरान की, तो एक ज्वाइंटली एक स्टेटमेंट था इंडिया का और साउथ अफ्रीका का कि जो ये पेंडेमिक के टाइम पर इस कठिन घड़ी में, इस दौरान जो वैक्सीन की जरूरत पड़ती है हर लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी को उस चीज की जरूरत है। तो हमें ऐसा हो कि जो कॉपीराइट और जो पेटेंट का जो पोर्शन है, जो ये राइट है, उससे ये अलग रखा जाए। अगर ऐसा रखा जाता है, क्यों रखा जाए और क्या उसका इम्पैक्ट होगा और क्या बेनिफिट होगा, वो हम लोग जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बहुत सारे पहलू पर बात करेंगे तो ये पता चलेगा कि उससे किस तरह से ये कुछ लोगों के कंपटीशन से मुक्त होगा और आम जन तक वो चीजें ठीक ढंग से पहुंच पाएगा, एफोर्डेबल रेट में होगा और सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, जो कि वैक्सीन बनाई गई है और जो लाइफ के लिए जरूरी है, जो कि जेनेवा कन्वेंशन के बेस पर यह जो है एक ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये किया गया था, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इसको नहीं किए। तो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज बोथ आर रिक्वायर्ड टू कॉन्शियस अबाउट नॉट टू मीन्स इसे उसके अंदर न रखें, कॉपीराइट या फिर पेटेंट के अंदर न रखें, तो उसका लाभ लोगों को मिल सकता है। अब बात हम कर रहे थे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या चीज, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी designated those things that are commonly recognized as being the possession of an individual or a group. अब होता क्या है कि जो क्रिएशन किसी ने किया है, जो नया इन्वेंशन किया है, नई खोज किया है, जो भी चीजें लिखी गई हैं या बनाई गई हैं, हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, चाहे वो इन्वेंशन किया हुआ हो या फिर जो है वो डिजाइन किया गया हो, लिटरेरी या लिखा हुआ हो, जो हम कॉपीराइट की बात करेंगे, या फिर आर्टिस्टिक वर्क हो या सिंबलिक वर्क हो, जो सिंबल से होता है, यूज फॉर द प्रोमिनेंट, ये सभी चीजें हैं क्यों, और उसका वो उस प्रॉपर्टी का मेन मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और किस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है, कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और अगर इन्फ्रीज होता है तो उसके लीगल एस्पेक्ट क्या है, इन सारे चीजों को हम लोग बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी व्हाटएवर जस्ट आई हैव ऑलरेडी स्पीक आउट कि व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट वी आर कंसर्न्ड विद द राइट्स एंड अगेन हाउ इट कैन बी, हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बढ़िया एक व्यवस्था है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनिक डॉक्यूमेंट, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स वहां पर अवेलेबल है, एंड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, उसकी रक्षा की जा सकती है इफ वायलेटेड बाय समवन। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने को रोकने की बात कर रहे हो, तो then during the debate Dr. Ambedkar was stated that it can, if all the fundamental rights are available and if remedies are not available, that there is no meaning of the fundamental rights. It was the statement of the Dr. Bhimrao Ambedkar during the debate. So that's why we consider as a heart of the Constitution Article 32. So 32 was included, and it was considered as a remedy. Whether under Article 32 Supreme Court has power to issue the writ and through that it can be implemented. So that's why we need, if we have the right, we need the protection, legal protection, and without legal protection, it is not possible to protect the rights of the individual. Which one is created by someone?
and created by someone, invented by someone, written by someone, performed by someone. So these all required to protect, because if not protected through the law, हमारे देश में इतने लॉ बने हुए हैं, जो चीजें लॉ से नहीं हो पा रही हैं, तो बिना लॉ के तो उसे प्रोटेक्ट करना इट इज इम्पॉसिबल। हर कदम पर आप देखिए, अगर हम क्राइम रेट को देखें तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। इतने लॉ बने हुए हैं, इतनी एजेंसीज हैं, उसको चेक करने वाली एजेंसीज हैं, कैसे इसे प्रोटेक्ट किया जाए, सारा व्यवस्था हमारा जो है कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है, या वी आर नॉट रीचिंग टू ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट गोल। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू द लॉ related to the, so number of the laws were enacted relating to the intellectual property rights also, and that law was very much applicable for the intellectual property if we see the through the international convention like Paris Convention, Cooperative Treaty 1970, Berne Convention, which one is related to the literary and artistic work, Copyright Act, Patent Act, Trademark Act, Geographical Indication of Goods Act 1999. So number of the laws relating to the intellectual property rights has been enacted slowly by the government of India. Many of the laws, many of the conventions, which one is applicable, because through the convention we are under the treaty, international agreement is there. So if we are part of that, I have mentioned that in case the issue relating to in a globalized era relating to the global level, so we need to the protection not only in India, in other countries also. So that's why number of the laws we have for the protection of the rights of the intellectual rights, intellectual property rights. So what is the necessity of the legal protection of intellectual property? Just I have highlighted that how to protect these rights, how to provide the opportunity to the people, those who have done some work relating to the particular issues, maybe issues relating to the patent, relating to the copyright, relating to the trademarks, whatever. So every human endeavor which promotes economic, social, scientific and cultural development of society must be encouraged. किसी ने कोई खोज किया, किसी ने कोई कुछ लिखा, एक लेखक है और किसी ने कविता लिखी और कविता लिखा, तो उसी कविता को लिखने वाले को उसका कोई रिवार्ड न दिया जाए, उनको इनकरेज न करा जाए, और वो पता चले कि वो सभी लोग कहें कि नहीं ये मैंने ही लिखा है, तो कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। और इसीलिए ऐसे लोगों को जिन्होंने रचना की है, जो लेखक हैं या जो अपने माइंड से जो क्रिएट कर रहे हैं, उनकी थॉट से जो चीजें आ रही हैं, जो बहुत सारे चीजों को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो ये सब चीजें उसी की कॉपीराइट होनी चाहिए और उसे इनकरेज करके कुछ रिवार्ड भी मिलना चाहिए। और इस रिवार्ड का ही मतलब है कि उसकी वो राइट होगी, उस प्रॉपर्टी पर उसका हक होगा, तभी वो कुछ उससे अर्न कर पाएगा। और वह रिवार्ड के रूप में, उसकी मेहनत के रूप में उसे कुछ, नॉट ओनली टू द साइंटिस्ट दोज हु हैव इन्वेंटेड द लॉज, बट दोज हु आर डूइंग सच वर्क, जो न्यू थॉट्स हैं, ओरिजिनल थॉट्स हैं, जो नई चीजें खोज करके ले आ रहे हैं और अपने थॉट से इस सारे सोसाइटी को, पब्लिक को जो चीजें दे रहे हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि उन्हें एक सम्मान भी हो, उन्हें उसका जो पारिश्रमिक है उसको उनके पाने का हक भी है। और इसे कैसे रक्षा की जाए, लीगल एस्पेक्ट क्या होंगे उसके। सो लीगल प्रोटेक्शन टू हिज इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, बिकॉज द वर्क डन बाय ए पर्टिकुलर म्यूजिशियन, एक डांसर ने परफॉर्म किया, वो परफॉर्म करने के बाद नॉट ओनली दैट, इवन द नेम आर आल्सो, नेम का भी कॉपीराइट है, पेटेंट है, और कैसे कैसे है, और उसकी कैसे रक्षा की जाए, और वो राइट कैसे उन लोगों के पास रह पाए, या उसको बेचने का अधिकार, या ट्रांसफर करने का अधिकार, या फिर उससे अर्न करने का अधिकार,
कैसे उन्हें मिले, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, द कन्वेंशन एस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, that is called the WIPO, has given wider definition of IPR, which includes, just I have already mentioned it, that literary work, artistic work, scientific work, performance of performing artists, क्योंकि जब कोई यहाँ तक कि आवाज किसी की हो वो भी कॉपीराइट में है, कॉपीराइट उसकी लोग कर लेते हैं। और वो कॉपीराइट चाहे वो डिस्कवरी हो, साइंटिफिक डिस्कवरी हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन का हो, या फिर जो हम पेटेंट करवाते हैं, जो ट्रेड मार्क्स का या लोगो का, या फिर हम जो इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं इन ऑल फील्ड ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल, ये सभी के लिए वह एक तरह का अधिकार और एक राइट होना ही चाहिए। ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स एंड कमर्शियल नेम्स एंड डेजिग्नेशन, कमर्शियल नेम एंड सर्विसेज की बात करते हैं हम अगर, तो आप देखें कि जो जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC है, या फिर बहुत सारे ऐसे नाम आप देखेंगे जिसका पेटेंट है, और बजाज है, या फिर जो लोगो और मोनोग्राम या फिर जो ये नेम का है, हीरो होंडा है या किर्लोस्कर है, ये बहुत सारे ऐसे नाम आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है। वो इसका जरूरत क्या है, क्यों ऐसी जरूरत है, व्हाट इज द नेसेसिटी टू गिव दी हम पेटेंट करने की बात करते हैं या फिर जो है कॉपीराइट की बात कर रहे हो, चाहे हम जो है जो इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात कर रहे हो, तो होगा क्या। और ये सबके लिए हमारे पास में डिफरेंट एक्ट है, और अंडर द डिफरेंट एक्ट हाउ टू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन, हाउ टू अप्लाई फॉर दैट, हाउ टू गेट द सर्टिफिकेट, एंड हाउ इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉज इफ इन केस वायलेटेड बाय समवन। तो जहां पे इंफ्रिजमेंट की बात हो रही हो, और इंफ्रिजमेंट है क्या, इंफ्रिजमेंट और वायलेशन की बात हम जो बात कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई एक लोगो है और दैट लोगो इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय समवन, तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, और दूसरा कोई करता है विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट उसके, तो वो आज हम एकेडमिक थोड़ी सी यहाँ पर बात करें, जो प्लेगरिज्म की बात करते हैं हम लोग एकेडमिक में, प्लेगरिज्म में होता क्या है कि किसी ने अगर कोई चीजें लिखा हुआ है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, थीसिस लिखा हुआ है, डिसर्टेशन, व्हिच वन इज कंसीडर्ड अंडर द कॉपीराइट आल्सो, दिस ऑल, even dissertation is also under the copyright, thesis is also, because this is exclusively prepared by someone, so that is also protected by। अब वो एक thesis तैयार कर लिया, दूसरा ले आकर के बोला भाई ये मेरा thesis है, it cannot be done by anyone। तो ये सारे चीजें जो है हमको कैसे प्रोटेक्ट करनी है और कैसे इसकी रक्षा होगी, और इंडिविजुअल जिसने क्रिएट किया हुआ है विथ देयर ओन माइंड, विथ देयर ओन ब्रेन, तो उसका लाभ उसे ही मिलना चाहिए। और इसे कब तक मिलना चाहिए, क्या होगा और कैसे वो यूज करेगा, और दूसरा उस पर अगर करता है तो कैसे उसे रोका जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द TRIPS, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, विच वन इज राइट ऑफ आर्टिस्ट, अभी मैं बात कर रहा था, पेंटर की हो, म्यूजिशियन की हो, फोटोग्राफर की हो। अब पता चलता है इंस्टाग्राम में कुछ फोटो है, बोला भाई फोटो आप ले नहीं सकते, अगर फोटो लेंगे तो यू हैव टू पे समथिंग, रोक लगा दी गई है। बहुत सारे आप देखेंगे कि जो आर्टिकल पब्लिश होती हैं आजकल, जो बुक्स हैं वो सब ऑनलाइन कर दी गई हैं, यू कैन रीड आउट बट यू हैव टू पे समथिंग। तो कुछ न कुछ प्रोसेस बना दिया गया है, वो कॉपीराइट उसका है, वो करेगा, चाहे को ऑथर भी हो सकता है या उसके बाकी। तो जब हम इन सब चीजों की कॉपीराइट जिसके पास होती है, और कॉपीराइट जिसका है वही उसका मालिक है, जिस तरह से बाकी प्रॉपर्टी के मालिक है उसी तरह से उसका भी मालिक वही है, जहां पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। तो हम ये दो चीजें हैं यहाँ पर, पहला है कि व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल। तो उस व्यक्ति का, उस इंडिविजुअल का जो राइट्स अवेलेबल है अंडर द कॉपीराइट हो, चाहे पेटेंट पे हो, चाहे ट्रेड मार्क्स पर हो, या ट्रेड सर्विसेज पर हो, तो अंडर द डिफरेंट एक्ट
relating to the patent, relating to the trademarks, relating to the copyright. These all are the rights available through the enactment of the law, are in international level where the conventions are available, and through the agreement how the individual can start their business in some particular area, some places. तो ये सभी जो कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, तो कॉपीराइट में जहां जहां पर उसको ये सुविधा है वो उसे मिलेगी और वो उसका हक है और उसे रक्षा भी किया जाएगा। इसी तरह से राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोसीजर फॉर द फोनोग्राम, साउंड रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। तो ये सभी जो चीजें हम डिस्कस करें और सभी पहलुओं पर हम लोग अगर एक ध्यान दें तो अलग अलग चीजों से, चाहे वो कॉपीराइट की बात हो, चाहे पेटेंट की बात हो, चाहे ट्रेडमार्क्स की बात हो, या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ द आईपीआर, व्हाट आर द कंपोनेंट, थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे, अदरवाइज बहुत डिटेल्स में चल जाएंगे तो टाइम भी होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ द आईपीआर, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, दैट इज द one component of this. So development of copyright in India was started in 1957 and it was amended 6 times in 1983, 84, 1992, 94 and 1999। और उसमें क्या क्या चीजें मेन हैं जो कॉपीराइट में है और कैसे इसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, लीगल जामा जो पहनाने की बात होती है वो कैसे होगा। तो वो है कि सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स कैटेगरीज ऑफ वर्क्स इन विच कॉपीराइट। अब वहां पर कौन कौन कॉपीराइट के अंदर में आता है, जो इंडियन लॉ है 1957 में आया और अमेंडमेंट होने के बाद में आज हम किन किन चीजों को उसमें समाहित किए हुए हैं, किन किन चीजों पर उसका अधिकार है, ये इसके बारे में अगर हम देखें तो लिटरेरी वर्क जो हम बात कर रहे थे अभी, लिखने पढ़ने वाली जितनी भी कॉपीराइट की बातें हैं वो हो सकता है। और दूसरा है कि अब देखें इंसाइक्लोपीडिया में हम जो ही क्लिक करते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं और वो जो चीजें हमें वहां पर अवेलेबल मिल रही हैं वो सारा किसी न किसी के माइंड की उपज है, किसी के माइंड से बनाया हुआ चीज है। और जब हम उसको यूज करते हैं तो ये जरूरी बात है कि वो पता चलता है कि रेफरेंस हमें देना पड़ेगा कि हम इंसाइक्लोपीडिया से हमने लिया हुआ है। इवन व्हेन वी एडवाइज टू आवर रिसर्चर फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग द थीसिस और आर्टिकल और द व्हाटएवर इज द चैप्टर बुक इन बुक, तो हम लोग यही बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी चीजें लें तो आप किस तरह से उसको रेफर करें, अदरवाइज ये जो है प्लेगरिज्म में चला जाएगा। विच वन इज द वेरी मच ऑफेंस अंडर द एकेडमिक वर्क। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट में जो बात कर रहा था, लिटरेरी वर्क की बात, जहां पर जो है ट्रांसलेशन भी, डिक्शनरी भी, अगर डिक्शनरी तैयार की हुई है, जैसे हम भार्गवा की डिक्शनरी पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द भार्गवा, वी कैन नॉट क्लेम दैट दिस इज माइन। तो हमें बताना पड़ेगा कि दिस वर्ड टेकन फ्रॉम द भार्गवा डिक्शनरी, सो आर व्हाटएवर इज ट्रांसलेटेड बाय समवन। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, हिंदी की, बंगाली की या जिन भी भाषाओं की, इस वर्क को अगर ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटेड बाय होम, शुड बी रिफ्लेक्टेड। और ये सारे चीजें तभी कोई ये कर पाएगा। इवन वी आर प्रिपेयरिंग बीइंग ए एकेडमिशियन, वी आर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द यूनिवर्सिटी वो है कि वो इस इंडिविजुअल ने बनाया है पेपर सेटर, हु इज द पेपर सेटर, ये एक्सक्लूसिव राइट है उसका, और ये वो दूसरा उसमें क्लेम नहीं कर सकता कि दिस इज माई प्रॉपर्टी। सो दीज ऑल इंक्लूडेड इन द कॉपीराइट। आर्टिस्टिक वर्क की जब बात कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग का काम हो, ड्राइंग का काम हो, डायग्राम काम का हो, मैप चार्टिंग का बात हो, या फिर प्लान हो, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर या फिर क्राफ्ट्समैनशिप की बात हो, तो जितने भी चीजें हैं, जो भी चीजें रंगाई पुताई की हम कर दें, पेंट बना लें, किसी का चित्र बना दें, कुछ बना देते हैं, ये भी कॉपीराइट की बात होगी, कॉपीराइट में है। और ये कॉपीराइट वो इंडिविजुअल का है जिसने उसे बनाया हुआ है। अब अगर कोई किसी ने रविन्द्रनाथ टैगोर का एक चित्र बना दिया है और वो आर्टिस्ट कौन है तो लिख देता है, नीचे आर्टिस्ट का नाम लिखा होता है,
और या फिर उस आर्टिस्ट का हमेशा, तो ये चीजें जो है उसका एक्सक्लूसिव राइट है कि प्रिपेयर बाय होम, वो उसी का राइट है, वो दूसरा उस पर क्लेम नहीं कर सकता, उस पेंटिंग पर या उस चित्र पर, या फिर इस तरह के कोई भी अभी कोई घर का एक प्लान बना दिया, जो हम बात कर रहे थे प्लान की, या आर्किटेक्चर जो प्लान बनाते हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग का मॉल खुल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो जो आर्किटेक्चर एक प्लान करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से बनाते हैं कि इन पर्टिकुलर एरिया हाउ द बिल्डिंग कैन बी यूज्ड, हाउ द लैंड कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस। तो जो भी वर्क है, ये लिटरेरी वर्क है या फिर जो आर्टिस्टिक वर्क है या फिर जो म्यूजिकल वर्क है, एक गाना रहमान ने लिखा है, अगर म्यूजिशियन है, अगर उन्होंने कंपोज किया है, तो उस पर उनका ही एक एक्सक्लूसिव राइट होगा। अगर हम फिल्म की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो वहां भी उसका एक अपना खुद का राइट होगा, और वो सभी के सभी राइट उस पर्टिकुलर, हमको याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि एक केस हुआ था गुजरात में, कोई एक पिक्चर पर, बालाजी या कोई एक पिक्चर वाले पर हुआ था, जिस पर एक कुछ, वो केस का थोड़ा हमें माइंड में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जहां पर जो है कर दिया जाता है और रोक लग जाती है, और उसका ही आधा। अभी देखें आप लोग, नाम का पेटेंट करवा रहे हैं, अपने नाम का, खुद का, वो किस तरह से उसकी राइट ले रहे हैं, कॉपीराइट हो जा रहा है, आप करते हैं। तो ये सारे चीजें हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, हम जो है सॉन्ग की बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे म्यूजिशियन की, तो अभी आजकल क्या हो गया, रिमिक्स होने लगा। रिमिक्स के सॉन्ग, पहले के पुराने सॉन्ग और नए सॉन्ग को मिला, गाने को मिला करके एक नया बना लेते हैं। तो ओल्ड सॉन्ग विद डिफरेंट म्यूजिक कंपोजिशन, वहां भी हम बात करें, या फिर सिनेमा की बात करें, फिल्म की साउंड रिकॉर्डिंग की बात करें। आज हम अमिताभ बच्चन खड़ा होते हैं, कोई भी चीजें एक देते हैं कि 2 गज दूरी, किस तरह से आता है, एक स्लोगन में आता रहता है, तो ये एक्सक्लूसिव उनका वर्ड है, इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय सम अदर पीपल। तो ये सारी चीजें जो है एक इंडिविजुअल का क्रिएशन है, और इस इंडिविजुअल पर उसका ही अधिकार है। आप पता नहीं, कहीं पढ़ा था मैंने कि इन लोगों ने, जो शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर ने भी अपने नाम का वो करवा रखा। तो ये सब चीजें जो है, या अक्षय कुमार ने खिलाड़ी, वो उसका भी, तो ये जो ये राइट क्यों कि ये कोई यूज नहीं कर सकता है। अब आज यदि बजाज ने अपना जो है स्टार्ट किया है, तो बजाज नाम से दूसरा कंपनी तो नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो प्रॉपर्टी है, कार है, तो कार के जैसा तो कार बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल को लेकर के जा करके जो है उसकी फोटो कॉपी ले सकते हैं, सेम फोटो कॉपी कैन बी डन। लेकिन वो कहे फोटो कॉपी करके बोले कि दिस इज माय प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी डन। तो ये इजी है जहां पर इस तरह की क्रिएशन है, तो वो इस वजह से उसकी रक्षा होनी चाहिए। दिस राइट कैन बी प्रोटेक्टेड, इफ नॉट प्रोटेक्टेड तब तो उसका जो वर्क है, उसका जो मेहनत है, वो तो बेकार चला जाएगा। एंड दैट पर्सन विल नॉट इनकरेज फॉर द फर्दर वर्क, बाद में कोई काम नहीं करना चाहेगा उस तरह का, और उसे कुछ उसका अर्निंग नहीं जब होगा। आपको यू ऑल अवेयर, ऑल द ऑडियंस नो दैट one is the book, every law students always read this book. I think this is my perception that more than 80% at least JN पांडे की जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या फिर जो इंग्लिश मीडियम में हो, everyone once purchase or once draw from the library, जरूर एक बार देखते हैं। तो एक्सक्लूसिव राइट तो उनका है, और आज चली आ रही है एक आदमी के नाम से जो भी रॉयल्टी मिलती है उनको जाता है, उनके सक्सेसर को जाता है। तो हम बहुत सारे राइट्स वगैरह की बात शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक राइट जो है कैसे प्रोटेक्टेड है अंडर द लॉ, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर गेटिंग द कॉपीराइट, और किस तरह से इन सब चीजों का लाभ उसको ही नहीं सक्सेसर को भी मिलता है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। अब हम बात करते हैं थोड़ा पेटेंट की। The Patent Act was enacted in the year 1970, and it was enacted twice, in 1999, 2002 and 2005. And what was the objective of the patent? The objective of patent law is to encourage scientists, researchers, or
फॉर द पर्पज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। आज मैं बात कर रहा था कि रिसर्च में हम लोग जो एकेडमिक रिसर्च की बात करते हैं, वहां पर भी सभी लोगों को पता है कि एक जो आर्टिकल लिख दिया गया वो भी, या फिर एक थीसिस बनाई गई वो भी, या फिर उससे हम रिसर्च किस पर्पज से कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी या क्या, या साइंटिफिक हम सर्चिंग किस लिए कर रहे हैं, फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव यू आर डूइंग दैट। तो जो हम चीजें इन्वेंट कर देते हैं, जो चीजें हम एक खोज करके एक नया चीज तैयार करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे वो किसी ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में हो, या फिर किसी भी पर्पज के लिए हो, तो वो, या सर्विसेज के लिए हो, तो वो सारे के सारे चीजें किसी इंडिविजुअल का जो जिसने की अपने ब्रेन को यूज करके बनाया। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्ट, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच वाज क्रिएटेड बाय सम माइंड, सम ब्रेन। तो जो ब्रेन से आया है, तो हमको किस तरह से उससे प्रोटेक्ट किया गया और वो लोगों को मिला। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पेटेंट इज लीगल रिवार्ड विच stimulates technology and industrial growth. At the beginning, I have just highlighted that nowadays in globalized era, we are running, or we are entering into competition, fair competition. Competition should be there, but competition always should be fair. हमारे कंपटीशन एक्ट में भी कहा गया 2000 कि जो कंपटीशन हो वो फेयर हो, और कंपटीशन में किसी भी तरह का अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब हम पूरे देश को बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया की बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें तैयार हों, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आए, जो अभी आप कोविड-19 के टाइम पर या पेंडेमिक के टाइम पर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो वहां भी जो पेटेंट की बात कही गई कि कॉपीराइट और पेटेंट का जो 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 चीज है उससे मुक्त किया जाए, इसे अलग रखा जाए, क्योंकि अगर ये इंडिविजुअल के ही हाथों में सिर्फ होगा तो हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे और आम जन तक वो चीजें नहीं पहुंच पाएगी और प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें 164 कंट्रीज आज अभी उस पर अभी भी चर्चा में है। ये जनवरी में भी बात हुई है 25 जनवरी को, और फिर हुआ कि फरवरी में हुआ, और फिर मार्च में भी उसकी बैठक होगी और उस पर ये करेंगे, जो कि अक्टूबर 2020 में इस पर चर्चा हुई थी। साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ज्वाइंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि इसे कॉपीराइट और पेटेंट से अलग रखा जाए, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि टू प्रोवाइड द वैक्सीन टू दी ऑल लेवल, सभी को मिले और एक प्रॉपर दाम में मिले, एक सही ढंग से मिले, जिससे कि सभी लोग उसका लाभ ले सकें, क्योंकि ये चीज लाइफ से रिलेटेड है। और इस कठिन घड़ी जो बोलते हैं, कठिन घड़ी वही कि जो चीजें मतलब लाइफ से रिलेटेड हो, लाइफ ही नहीं है तो फिर मतलब क्या रह गया। तो जो चीजें ऐसी पैदा हुई हैं और इसके लिए जो वैक्सीन बनाई जाए वो सब लोगों को ठीक ढंग से मिले और कम पैसे में मिले, सभी लोगों को लग सके, तभी हो सकता है कि जब इसका एक्सक्लूसिव राइट किसी का न हो। तब एक्सक्लूसिव राइट जब हो जाएगा तब तो वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, जैसा कि हम लोग अभी तक वो सुबह से आधा घंटा से उसी पर बात कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति का किसी का उस पर पूरा राइट होगा तब तो ये चीज मुश्किल होगी। टर्म्स क्या है इसका? पेटेंट अगर करा दिया जाता है, किसी ने पेटेंट करा, तो क्या वो पेटेंट करने के बाद वो फुल लाइफ के लिए हो गया या कब तक के लिए है? पेटेंट इज ए ग्रांट ऑफ एन इन्वेंशन बाय द गवर्नमेंट अंडर द लॉ टू द इन्वेंटर टू एक्सचेंज फॉर फुल डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशंस। किस तरह से वो अपना करेगा और किस लिए करेगा, और ये लॉ जो बनाया गया वो इसीलिए कि इन्वेंटर को एक राइट मिले। मैं जो बात कर रहा था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात, क्योंकि इन्वेंशन चाहे वो कॉपीराइट की बात हो, चाहे वो पेटेंट की बात हो, चाहे ट्रेडमार्क की बात हो, जिसने भी वो लोगो बना दिया, जिसने भी वो कोई भी चीज इन्वेंट कर दिया और उसका पेटेंट हो गया, तो एक्सक्लूसिव राइट उसका हो गया। लेकिन वो एक्सक्लूसिव राइट कितने साल के लिए होगा? तो ये पहले तो 15 साल, अभी 20 साल के लिए हो गया है कि पेटेंट जो राइट है वो जो है जनरली टाइम इसका है 20 साल के लिए, और उसके बाद वो पब्लिक का हो जाएगा उस पर ये करके। ऐसे ही कॉपीराइट की बात अगर की जाए तो वो भी
50 इयर्स का था वो 60 इयर्स के लिए हो चुका है, और वो तब तक उसके बाद में वो पब्लिक। तो ये जो चीजें हैं अगर राइट में, अगर लॉ में नहीं होगा, ये तो डिफरेंट सेक्शन में ये जो बना है सेक्शन अंडर द कॉपीराइट एक्ट, अंडर द ट्रेड एक्ट या फिर अंडर द पेटेंट एक्ट, तो डिफरेंट एक्ट पोर्शन में उसकी जो है अरेंजमेंट की गई है और किस तरह से उसकी रक्षा की जा सकती है। अब हम आप बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की। तो ट्रेडमार्क्स इज ए विजुअल सिंबल। पहले मैंने बताया है इस चीज को, ऐसा नहीं कि इसको बताया नहीं। एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन जस्ट आई हैव हाइलाइटेड कि उसमें ट्रेडमार्क क्या है और ट्रेडमार्क सर्विसेज क्या है। तो ट्रेडमार्क इज ए विजुअल सिंबल थ्रू व्हिच गुड्स आर सोल्ड इन ए मार्केट। जब हम बात कर रहे थे अभी कि कोई भी लोगों की, किसी भी डिजाइन की, जैसे मैंने बोला कि गोदरेज का, बजाज का, हीरो होंडा का, किर्लोस्कर का, ये जो कॉर्पोरेट नेम है, आज हम लोग उस ब्रांड के पीछे ही भागते हैं। अगर ये टीवी पर आ गया कि हमाम साबुन बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा महकता है और लगाइए तो बस ये हो जाए। पहले एक बात करें हम कि कभी कभी आता है, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ही कभी कभी ले लेता हूं, आता है केस किंग ऑयल आता है एक एडवर्टीजमेंट, और उसको बोलता है कि 20 दिन 21 दिन लगाइए पूरे बाल आ जाएंगे, और मैं तो लगाता रह गया और जो है वो भी चला जा रहा है। शर्मा जी वो भी लगा जा रहा है। तो माय फ्रेंड और ऑडियंस, ये चीजें जो है सर इस पे ब्रांड, सर इस पे जो है जूही चावला जी ने इसका एडवर्टाइज किया था जी जी, उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं सर आप बिल्कुल। जी ठीक ठीक सर जी। तो वही बात है कि डियर फ्रेंड्स, जो आज के डेट में हम लोग जो देख रहे हैं, इट वाज इन्वेंटेड बाय समवन, क्रिएटेड बाय समवन, पेटेंट इज देयर, कॉपीराइट इज देयर, ट्रेडमार्क, बट हम लोग वही उसी चीज के पीछे भागते हैं और पर्टिकुलर चीजों को लेकर के पहचानते हैं। कहने का मतलब कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाउ टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, कि विच ब्रांड ऑफ दी थिंग्स इज अवेलेबल इन द मार्केट, और वो मार्केट में अपनी पहुंच, अपनी जगह बनाने के लिए आज सभी लोग बजाज का स्कूटर, बजाज की गाड़ी, बाइक, या बजाज के बहुत सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहे हैं। किसी का एलजी का, कोई सैमसंग चाहता है कि हमारे पास में सैमसंग का मोबाइल होगा तो सब कुछ हमारे घर में सैमसंग ही चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, रेफ्रिजरेटर जो भी चाहिए वो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, सब उसका चाहिए। तो ये जो नाम है, ये जो पेटेंट किया जा रहा है, ये इसका जो कॉर्पोरेट नेम का पेटेंट हुआ, इसका मकसद है ओनली एंड ओनली कि उसकी पहचान रहे। बिना पहचान के, जैसे हम इंडिविजुअल की बात करें, किसी का भी नाम हो, हम अपने ही ऊपर ले लेते हैं कि मेरा भी नाम तो है, एक कुछ नाम रखा हो घर वालों ने, और वो नाम एक्सक्लूसिव है, तो वो अब नाम तो कोई रख सकता है, 10 लोग रहे, लेकिन कम से कम पहचान तो होगी। तो उसका फिर उसी तरह से एक पहचान भी होती है, और जो ये पेटेंट करा दिया जाता है, तो वो तो एक जो, जैसे मैंने बताया कि नाम का भी लोग करवा चुके हैं, शाहरुख खान और वो सचिन तेंदुलकर भी अपने करवा चुके हैं, तो वो इसलिए ही करवाए हैं कि उसका कोई यूज न कर पाए। अब हम लोगों के नाम का कोई यूज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इतने सेलिब्रिटी हैं कि उन लोगों के नाम का कोई यूज हो तो लोग करोड़ों करोड़ रुपया कमा सकते हैं, और यहाँ के नाम का तो यूज उस तरह से होगा नहीं, तो वो लोग पेटेंट करवा दिए, अपना कॉपीराइट करवाते हैं, या बाकी चीजें जो है लोगो वगैरह बनवा लेते हैं, जो भी है। तो हम जो बात कर रहे थे कि ट्रेडमार्क की और ट्रेड सर्विसेज का। अब ट्रेडमार्क और ट्रेड सर्विसेज, चूंकि हमारे ट्रेड एक्ट 1999 जब आया तो उसमें एक प्रोसीजर रखा गया कि लोगो हो या मोनोग्राम हो या इस तरह का। तो अब जैसे आप देखेंगे कि कुछ चीजों का सर्टिफिकेशन होता है, सम सर्टिफिकेशन लाइक एग मार्क, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो उस पर हम जो है उसका एक लोगो देखते हैं। बहुत सारे चीजों में देखेंगे ISI मार्क्स है कि लिखा है कि नहीं है, उसको हम पहचान करके खरीदते हैं या जाते हैं, जो कि उसका एक्सक्लूसिव राइट उसका होता है। या फिर हॉल मार्क्स फॉर दी ज्वेलरी पर्पजेज, जो आज मार्केट में बिक रहा है। तो इन सब चीजों पर हम लोग देख रहे हैं कि खरीदते समय लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और ये उसका पूरा हक है, और उसी अकॉर्डिंग जो है उसे यूज करते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि राइट्स ऑफ द ट्रेडमार्क होल्डर,
अब राइट क्या क्या है उनके, वही एक्सक्लूसिव राइट वही यूज कर सकता है, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। राइट टू असाइन वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब किस तरह से वो कर सकता है, या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, सक्सेसर के थ्रू, या इंप्लॉइज के थ्रू भी उसका यूज करा सकता है। राइट टू सीक लीगल रेमेडीज, विच वन इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हमने कहा कि लीगल एस्पेक्ट जो है वो जानना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, डिफरेंट थ्रू द डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट लॉ, तो उसकी रक्षा कैसे की जाए, हाउ इट कैन बी प्रोटेक्टेड, तो फिर जो है वो लॉ आता है। अब वहां लिमिटेशन है कि कहाँ कहाँ कितने दिनों के लिए लिमिट होगा, और कितने कौन कौन कर सकता है, और कब उसका यूज कौन नहीं कर सकता है। दूसरा, इन्फ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क्स। इन्फ्रिजमेंट जब बात आती है, इन्फ्रिजमेंट का वही जो वायलेशन होता है, कोई ऐसा जो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट उसके और उसका एक्सक्लूसिव किसी का राइट है उसको यूज करता है, तो उसे इन्फ्रिज, अगर वो किसी ने सारे प्रोसेस किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो कोई उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह जो नहीं हुआ है, प्रोसेस नहीं हुआ है, तो ऐसे में इन्फ्रिजमेंट हो सकता है। डिजाइन एक्ट 2020 जो आया, वहां पर भी देखें, डिजाइन refers to the features of the shape, configuration, pattern, ornament, composition of lines, colors, तो ये सारे चीजें जो है उसमें है। this may be applied by any industrial process or means manual, mechanical or chemical, separated or by combined process। तो ये सारे चीजें जो हमारे डिजाइन की बात है, जो हमारा डिजाइन जो 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 बात कर रहे थे हम इंडस्ट्रियल डिजाइन की, हाउ इट कैन बी प्रोटेक्टेड। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट मींस प्रोडक्ट हैविंग ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट। देखिए इसको डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, जो जो सर्किट बनाते हैं, जो हमारे चाहे वो रेडियो में हो चाहे वो टेलीविजन में हो, उसका हम थोड़ा सा यहाँ पे दिए हैं सर्किट किस तरह से है और कौन इन्वेंट किया, कौन बनाया है, तो उसका एक्सक्लूसिव राइट उसी का है। और डिजाइन किस डिजाइन का होगा, नो एनीवन कैन डू दैट। लेआउट का भी यहाँ पर है। दूसरा, हम एक पोर्शन को टच करते हैं थोड़ा सा, जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स की बात होती है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर एरिया की बात होती है। जहां तक हम अभी बात कर रहे थे कॉपीराइट की, जो लिखने की बात होती है, आर्टिस्टिक की बात हो, म्यूजिशियंस की बात थी, या ट्रेडमार्क की बात थी, या पेटेंट कराने की बात थी, ऐसे ही इसी तरह से कुछ है जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जो कि वो गुड्स के ऊपर होता है। जैसे हम देखें कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स आर डिफाइंड एज द एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी which refers to the geographical indication referring to a country, to a place situated therein, beginning to the country or place of origin of the product। किस जगह का है, किसका है, क्या प्रोडक्ट है। हम एग्जांपल के तौर पर देते हैं, जैसे बासमती राइस। अब बासमती राइस की बात अगर करें हम, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर एरिया का फेमस है। हम टी की बात करें, मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही रहता हूँ, यहाँ इस समय कूच बिहार में हूँ, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो दार्जिलिंग टी की बात करते हैं, ये एक्सक्लूसिव वहाँ का एक प्रोडक्ट है। और वो कहे कोई कि हमें इसे यूपी में, लखनऊ में पैदा कर दूं, लखनऊ का नाम दे दूं, नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है और उसकी पहचान बनी हुई है। आसाम टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक और है, बहुत सारा फेमस में नहीं आता है, डुवर्स टी गार्डन यहाँ पर है, तो वहां का भी आता है, जो कि फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है, 1.5 लाख रुपए केजी का मिलता है उसमें, बहुत अच्छे अच्छे टी का। तो इस तरह के भी हैं जो कि एक्सक्लूसिव उस प्लेस का पहचान है। और जो ये सारे चीजें, अच्छा, या फिर हम देखेंगे कुछ कपड़े की बात है, जैसे आसाम सिल्क की साड़ी होती है, साड़ी वगैरह की बातें थोड़ा सा कर लिया जाए, इसमें कपड़ों की बातें भी कर लें अगर, तो ये सारी, या मैंगो की बात करते हैं, खाने पीने की चीजों के साथ साथ पहनने वाली भी चीजें हैं, जैसे हम लोग स्लोगन पढ़ते थे, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये सब चीजें जो है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की है, बनारस की बनारसी साड़ी, या फिर ये पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर चीजों की बनी हुई हो, तो या सोलापुर का कोई टॉवेल है या चादर है, जो हम लोग ढूंढते हैं कहीं कहीं जाकर के, भाई ये है तो ले लेते हैं। तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू देयर ओन आइडेंटिटी, relating to the intellectual property right, comes under the intellectual property rights, and these are exclusively for the person of the
home created by home. अब यहाँ थोड़ा हम, चूंकि मैं कश्मीर में रह चुका हूँ, तो श्रीनगर का वहां पर देखेंगे वहां का एप्पल, अब एप्पल खरीदने जाइए तो ये श्रीनगर का है या फिर ये जो है हिमाचल प्रदेश का है। तो इस तरह के है। ऐसे ही संतरा की बात करें तो कुछ जो है जो अलग अलग जगहों का है, पुणे वगैरह में भी आता है, और इधर दार्जिलिंग और गैंगटोक वगैरह में भी अगर देखें, सिक्किम में, तो उसका टेस्ट में भी फर्क होता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो वो चीजें जो है भी उस एक्सक्लूसिवली उस प्लेस की पहचान, उस प्रोडक्ट की पहचान के रूप में ही जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि यही क्लोज करना चाहिए और कंक्लूड करना चाहूंगा यहीं पर। Thank you. Hello. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir, for giving your valuable insight on COVID vaccine and IPR. I am sure your address will help a lot in understanding the concept. Thank you so much, sir, once again. आपने सच कहा कि जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे लाइफ की, जो लाइफ को सेव करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें पेटेंट और कॉपीराइट से हम अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि मानव समाज का निर्माण करने में ज़्यादा यूजफुल हो सके। जी 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 बिल्कुल। ओके सर, अब हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन कर लेते हैं। If any participants wants to ask any question relating to the topic, please go ahead. Madhvi ma'am, there is a question in a Q&A box. You can ask from there. Yes. सर, एक सहनवाजुद्दीन है, इनका क्वेश्चन है, if two people think of an idea together and later due to some disagreement they get separated, later they both go to register for registration of that idea, then who gets the copyright or patent? मैडम, यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा, क्या नाम है बताए हैं? नाम क्या बताए हैं? शहबाजुद्दीन। शहजाबुद्दीन, देखिए आइडियाज जो होती हैं वो उपज एक की होती है, दो की उपज हो ही नहीं सकती है। पहली बात, दो माइंड तब हो, दोनों माइंड ने क्रिएट किया और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक ही माइंड, दोनों के माइंड से एक ही चीजें एक ही साथ नहीं होती हैं। जब भी होती हैं वो कोई चीजें, तो पहली बात होती है कि एक ने क्रिएट किया और दूसरे ने उसको सहमति दे दी। चाहे हम किसी का जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई बुक लिखने की बात कर रहे हैं, किसी भी चीजों पर बात करते हैं, तो पहला होता है एक एनजीओ खोलते हैं, हम एक कॉलेज बनाने जाते हैं, तो एक ने स्टार्ट किया, दूसरे ने उसकी सहमति दे दी, ये होता है। अब दोनों ने ही उससे दे दिया, तो जो पहले दिया होगा उसी का होगा, जो दूसरे बार जो लेके जाएगा वो उसे एक्सेप्ट नहीं होगा। ये वेरी मच क्लियर। तो रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है कि जो पहले एप्लीकेशन दिया वो उसी का वो थॉट होगा, उसी का माना जाएगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। Okay, thank you, sir. No anyone questions. Now I request Ms. Naiz Zamir, HOD, Faculty of Law, to deliver vote of thanks, Dr. R.D. Dubey, sir. Nice, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Madhvi ma'am. Just a sec. Okay. Thank you so much, Madhvi ma'am. A very good afternoon to everyone present here. Professor R.D. Dubey sir, I know him very well and I have already met him. So I was knowing that कि यहाँ पे भारी भरकम कुछ मिलने वाला है ज्ञान. So I would like to definitely sir. So I would like to thank you sir for giving today's speaker, Professor Dr. R.D. Dubey sir, for taking out the time from his busy schedule, because as I know, being a head, it's very difficult to take out the time and enlightening us with the knowledge
And today's webinar was full of knowledge and interesting facts, and it has gave us deep insights into the topic, and also revealed some interesting facts about Darjeeling tea, the Assam saris especially. So thank you so much, sir. And I also thank you to all the participants present here for paying the attention and learning. I hope you must have got the information, even the basic information was there. So, and I also like to thank my organizing team, Madhvi Madam, sir, and I would like to specially thank our Dean, sir, Dr. Nilesh Sharma, sir, for helping all of us. And we are in a team. We always work in a team, so it doesn't get very difficult to do any kind of work over here. So thank you so much, R.D. Dubey, sir. And it was a pleasure hearing you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. thank you so much, Dubey sir. Thank you, Nilesh sir, Thank Naik you very ma'am, much. Bhishma sir, Thanks. technical team, Raman sir. Thank you so much. Thank you, Dubey sir. Thank you very much. We all आप सभी enjoyed a लोगों lot. को, मेरे तरफ से सभी लोगों को प्रणाम. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल सर, आप लोगों ने एक मौका दिया इंटरेक्ट होने का, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you Okay, so sir. much, sir. Thank you. Now we move. Okay, sir.